Okay. Now, if there is only two sets, A and B, in this two sets A and B, this is called as A intersection B. Now, can you tell me where is A union B over here? A union B किधर है? All the elements of A and B. This is called A union. Okay, this is called A union B. Now, instead of two sets over here, if there are three sets, now we are making a formula for A, B, C. So, can you try doing that? अच्छा, ये formula ऐसा क्यों है? Number of elements of A union B is Na plus Nd minus A intersection B. ये ऐसा आया क्यों? When I do Na, तभी ये intersection part आया था. When I did Nb, तभी भी ये intersection part आया. ठीक है? That means that intersection दो बार आ चुका है. So that's the reason one time that intersection is minus. Remember, in a set, elements are never repeated. Because it is not repeated, so minus N A intersection B किया है. Now, if you can try telling me a formula for this. What is the formula for N of A union B union C? Yes, please. Use your brains. जो इधर method use किया वैसा use करो. बोलो क्या करना है? सबसे पहले Na पूरा सर्कल. आगे बोलो. Plus NB. Next. Plus NC. Okay. Now, since I did Na मतलब ये पूरा circle, Nb यानी पूरा circle, Nc यानी पूरा circle, some areas are being repeated twice. In a set, elements are never repeated. तो वो area minus करना पड़ेगा. कौन सा area double हुआ है? A intersection B. A intersection B. A intersection B. Minus D intersection Intersection C. 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 minus. A intersection C. But again, there is a trouble. I did A, B, C. That time these areas were repeated. तो मैंने इसको minus किया, इसको minus किया, इसको minus किया. But तुमने एक space, particular space को discuss ही नहीं किया. ये वाला, बीच पे जो समोसा है ना, इसको discuss ही नहीं किया. Now, what is the problem with this part? When I did A, that time this area, this middle area, which is common to all, this area was included in A, included in B, included in C. So when I added this area was added 3 times. 3 बार add हुआ. Then जब ये common area minus करने गया ना, this part, ये जब मैं minus करने गया ना, तभी मैंने यही part चेक करो minus करते वक्त यही part मैंने 3 बार minus भी कर दिया. इसके माइनस में भी आ गया, इसके माइनस में भी आ गया, इसके माइनस में भी आ गया. सो इवेंचुअली ये एरिया का क्या हुआ? यस प्लीज. 0. वो आया ही नहीं ना, वो एरिया काउंट ही नहीं हुआ. सब यूनियन का मीनिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय यूनियन? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी. दैट मींस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, बी एंड सी. सो दिस एरिया वाज नॉट काउंटेड. सो व्हाट शुड बी डन? वो एरिया मिस हो गया इस फॉर्मूला में. सो हाउ शुड आई डू दैट? प्लस n of number of elements of A intersection B intersection C. Is this clear to you? समझ में आ गया फॉर्मूला क्या है? अच्छी बात है, लर्न कर लो फॉर्मूला. This is Na plus Nb plus Nc minus A intersection B, B intersection C, A intersection C plus n of A intersection B intersection C. So now, if you understand this formula, let us do a sum related with that. Come to word problems, page number 97. Come to 7 sum. Page 97. In a class, 200 students who appeared certain examination, 35 students failed in CET, 40 in NEET, 40 in Z, 20 failed in CET and NEET, 17 in NEET and NEET and Z, 15 in CET and Z. 5 failed in all 3 examinations. Find how many students did not fail in any examination, failed in NEET and Z advance. Z entrance. Okay. So now this is a sum related with failed. Okay, not pass. So तुमको failed में ही पूरा sum करना है. So let's start. So there are
35 students failed in CET. So I'll just name this as per the symbols itself. CET, next NEET, and last Z. ठीक है, तो ये 3 एग्जामिनेशन का है. Now you have to rethink कि ये बीच का समोसा आएगा कि नहीं आएगा, ये कब आएगा और ये कब नहीं आएगा. If there are no students in between here, तीनों का कॉमन स्टूडेंट्स दिया ही नहीं है, तो ये नहीं आएगा. फिर ये डायग्राम ऐसे बनेगा, मतलब ये कॉमन एरिया आया ही नहीं. ठीक है, सो यू हैव टू थिंक कि ये कॉमन एरिया आता है कि नहीं आता है. ठीक है, सो लुक एट द क्वेश्चन एंड टेल मी, इस समय ये कॉमन एरिया आता है कि नहीं आता है? सर. आता है. Yes, sir. Yes, sir. 5 failed in all 3. 5 field. हाँ. 5 failed in all 3, यानी वो एरिया आएगा. सबसे पहले 35 students failed in CET, 40 students failed in NEET, 40 students failed in Z. ठीक है, मैं डायग्राम में लिख रहा हूं so that it becomes easy to understand. 20 failed in CET and NEET. 20 failed in, ये पूरा ये बीच का बादाम. ठीक है, नेक्स्ट 17 in NEET and Z. 17 failed in NEET and Z. 15 failed in CET and Z. ठीक है, 5 failed in all. How many students did not fail in any subject? How many students failed in NEET or Z entrance? Okay. Now, how will I find out? Acha, by the way, there is how many students did not fail in any examination. तो उसका मतलब क्या होता है? तुमने 9th में किया था, तभी भी मैंने बताया था. ठीक है, तुमको याद है 9th में तुमको मैंने कहा था ये बॉक्स कब आएगा? यूनिवर्सल. Universal. वो कब आएगा? यूनिवर्सल सेट वर्ड प्रॉब्लम में यूनिवर्सल सेट कब आता है और ये यूनिवर्सल सेट कब नहीं आता है, उसका टेक्निक बताया था. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया रहेगा तो Number of टोटल students नंबर. ढूंढना रहेगा तो universal set आएगा. Okay, whenever the question has number of students who did not, A and B दोनों भी नहीं होता है, यानी ये एरिया. जब क्वेश्चन में ये एरिया आएगा ना, मतलब बॉक्स आएगा. ठीक है, डिड नॉट मतलब A एंड B दोनों भी नहीं है, मतलब ये एरिया. ठीक है, दिस एरिया, ये जो बाहर का एरिया है, सर्कल के बाहर का वो एरिया जब आएगा ना तो बॉक्स आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा. ओके, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन एंड टेल मी. क्वेश्चन में रीड करो. फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट फेल इन एनी एग्जामिनेशन. यानी बाहर का एरिया आया कि नहीं आया? आएगा. बाहर का एरिया आ गया. डिड नॉट फेल इन एनी एग्जामिनेशन, बिकॉज वो एरिया आया मतलब बॉक्स बनेगा, अदरवाइज बॉक्स नहीं बनता. सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 200. दिस इज योर यूनिवर्सल सेट. ओके, बाय द वे लेट करोगे, लेट क्या? लेट सी बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन सीईटी, एन बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन नीट, जे बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन सी मेंस. समझ में आया? वो स्टेप्स तुम लोग लिखोगे, मैं अभी स्टेप्स लिख नहीं रहा हूं. ओके, नाउ लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला ओवर हियर. तुमको सब नंबर्स मालूम है. So now tell me number of elements of CET union NEET union Z mains Z exam का आंसर बताओ. अभी मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, वो आंसर दो. नंबर ऑफ सी. नंबर ऑफ CET प्लस C. नंबर ऑफ ऑफ NEET प्लस नंबर नंबर ऑफ Z जी माइनस माइनस Minus नंबर ऑफ सी. C intersection इंटरसेक्शन NEET, जी. NEET इंटरसेक्शन Z, C इंटरसेक्शन Z. फिर आगे number of Plus अगर ये एरिया रहेगा plus number of ये एरिया रहेगा तो ही प्लस होगा, अगर ये एरिया होता ही नहीं तो प्लस नहीं होता. C इंटरसेक्शन NEET इंटरसेक्शन Z. Yeah. Okay. Now let us put up the values. Yes. Number of students in CET is
35 plus 40 40 plus 40 40 minus C intersection N यानी 20 minus 20 नीट intersection Z यानी 17 minus 70 17 C intersection J यानी minus 15 minus plus 50 तीनों का कॉमन 5 ठीक है। और से कैलकुलेशन दिस इज 80 35 plus 5 यानी 40 यानी 120 हो गया। 120 में से 20 17 और 15 माइनस करने का। तो पहले 20 plus 15 यानी 35 35 plus 17 यानी 45 52 दिस टोटल बिकम्स 52 यानी टोटल आएगा 120 minus 52 ठीक है। इन सब का टोटल आता है 120 इन तीनों का टोटल आता है 52 ओके। सबट्रैक्ट करो 8 11 minus 5 यानी 6 68 सो ये टोटल यूनियन कितना आ गया इसका 68। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन did not fail in any examination yes टोटल कितने स्टूडेंट्स थे 200 200 उसमें Minus. से 68 failed so did not fail in any examination का क्या आएगा 2 3 132 130 समझा। now Yes. next question for the next question is failed in NEET or Z NEET और Z now मेरा क्वेश्चन जब NEET और Z बोला है ना तो ये CET पूरे सब में है ही नहीं निकाल दो CET को CET पार्ट पूरे सब में है ही नहीं यानी मेरा सब सिर्फ ये और इसका है मतलब नीट का 40 है इंटरसेक्शन 70 है ये 40 है तो मेरा सम 2 सर्कल का हो गया ठीक है यानी तुम्हारा 9th का सम हो गया ठीक है ओके। और मतलब प्लीज रिमेंबर द ट्रिक और का मतलब होता है यूनियन एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। हाँ नाउ रीड प्लीज फेल्ड इन नीट और जी तो मेरे को क्या ढूंढना है नंबर ऑफ नीट और जी बराबर लिखा मैंने No sir. क्या मिस्टेक है सर Union. यूनियन आएगा यूनियन ठीक है यूनियन आएगा। अब बताओ मेरे को फॉर्मूला बताओ व्हाट इज दिस फॉर्मूला नंबर ऑफ n plus number of j minus number of Minus neat number of intersection z yes number of neat यानी 40 plus z यानी 40 minus intersection यानी 70 80 minus 70 63 students in NEET or Z. Is this clear? Yes sir. Listen. A college awarded 38 medals in volleyball, 15 in football, 20 in basketball. The medals awarded to the total of 58 players and only 3 players got medals in all 3 sports. 3 players got medals in all 3 sports. क्योंकि all 3 sports वाले हैं यानी कि बीच का ट्रायंगल आएगा 3 people got medals in all 3 sports okay now there is volleyball 38 students got medal over here football 15 football 50. 15 students got medal basketball 20 students got a medal okay there are 58 players to tell me ये 58 players universal set बनने वाला है तो ये बॉक्स बनेगा कि नहीं बनेगा use your imagination ये बॉक्स बनेगा कि नहीं बनेगा जल्दी बोलो हाँ या ना तो बोलो सर एक डाउट है पूछो Sir. यस सर okay so because as there are 58 medals which are distributed so those medals are actually distributed here only so did not get medal वाला concept ही नहीं है यानी वो 58 को मैं क्या लिखूंगा anyone Union.
वेरी नाइस. V यूनियन F यूनियन B. वॉलीबॉल, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल. वो यूनियन बन गया, वो है ना पूरा का पूरा ये एरिया बन गया, और इस एरिया को क्या बोलते हैं? यूनियन. दैट इज 58. ठीक है. सो नंबर ऑफ वॉलीबॉल मालूम है 38, नंबर ऑफ फुटबॉल मालूम है 15, नंबर ऑफ बास्केटबॉल मालूम है 20. अब मेरा और नंबर ऑफ वॉलीबॉल इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केटबॉल भी मालूम है 3. अब मेरा क्वेश्चन क्या है? थोड़ा सा ट्रिकी किया है. क्वेश्चन क्या था? How How many many received Receive medals medals in in exactly exactly two two sports? sports. यस. अब बोलो उसका मीनिंग क्या होता है? एग्जैक्टली टू. हाँ बोलो. Intersection. Section. intersection? कौन सा? Intersection. फाइंड बताओ क्या है? V intersection F. अरे वाह, वेरी नाइस. V इंटरसेक्शन है प्लस B intersection F F. इंटरसेक्शन B प्लस V B इंटरसेक्शन F. हाँ सर, V इंटरसेक्शन B. B. और वो प्लस में चाहिए. नंबर ऑफ स्टूडेंट जिसको सिर्फ इन दो में मेडल मिला, उनका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. इंडिविजुअली नहीं चाहिए, ये अकेला नहीं चाहिए. ठीक है. उन्होंने ये थोड़ी बोला एग्जैक्टली वॉलीबॉल एंड फुटबॉल, ऐसा नहीं बोला. उन्होंने बोला 2 मेडल्स. तो 2 मेडल्स में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है. समझ में आ रहा है? आर यू क्लियर विद दिस क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. चलो फॉर्मूला Yes, अप्लाई करो sir. एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट. चेक योर आंसर. लेट्स सी तुम्हारा डायग्राम मेरा डायग्राम कैसे आता है. 25 students take tea, 20 students take coffee, 15 students take milk, 8 students take both milk and coffee, none of them take tea and milk, and everyone takes one beverage. Find the total number of students in the hostel. Okay. So here problem कहाँ पे आया मालूम है? टी है, कॉफी है, मिल्क है, 3 पार्ट है, 3 एलिमेंट, 3 सेट्स बनेंगे. टी एंड कॉफी लेने वाले स्टूडेंट्स है. 10 students take tea and coffee, 8 students take milk and coffee, but एक प्रॉब्लम है, none of them take tea and milk both. ठीक है. यानी ऐसा नहीं आएगा. तो किसी ने ऐसा बनाया रहेगा तो ये गलत डायग्राम. ठीक है. ओके. तो मे भी कुछ स्टूडेंट ने ऐसा बनाया होगा. ठीक है, ऐसा बनाया रहेगा, ये भी गलत डायग्राम है. मतलब तुमने तीनों का इंटरसेक्शन किया या तीनों का इंटरसेक्शन नहीं किया, ये भी गलत डायग्राम है. बिकॉज देयर आर स्टूडेंट्स हु इज नॉट टेकिंग टी एंड मिल्क बोथ. हाँ, टी एंड मिल्क बोथ, नन ऑफ देम टेक्स टी एंड मिल्क. या नहीं, ये डायग्राम ऐसे बनेगा, टी मिल्क कॉफी. ठीक है. या फिर ये डायग्राम ऐसा बनेगा, टी मिल्क कॉफी. ठीक है. कितने लोगों को करेक्ट डायग्राम आया? रेज देयर हैंड्स प्लीज. ऐप के ऊपर. हाँ, दानी, मेलिसा, वैष्णवी, तिशा, गंधर्व, लंड्रॉय, आंगी, अंकिता शर्मा. ओके, ठीक, वेरी गुड. इट्स ओके, नॉट एन इशू. लोग पहली बार ही कर रहे हो ना. ओके. सो देयर आर स्टूडेंट्स हु टेक टी मिल्क कॉफी वाला सम है. देयर आर नो स्टूडेंट्स हु टेक टी एंड मिल्क. ओके. सो पहला टी है. टी लेने वाले 25 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स टेक कॉफी एंड मिल्क लेने वाले 15 स्टूडेंट्स. 10 स्टूडेंट्स टेक टी एंड कॉफी, 8 स्टूडेंट्स टेक मिल्क एंड कॉफी. ठीक है. नन ऑफ देम टेक टी एंड मिल्क, ये वाला नहीं है इसलिए इंटरसेक्ट नहीं किया है. एंड एवरीवन एल्स टेक्स एटलीस्ट वन बेवरेज. व्हाट डू यू मीन बाय एवरीवन एल्स टेक्स ओनली वन एटलीस्ट वन बेवरेज? Universal. यस, यूनिवर्सल सेट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. नहीं आएगा. नॉट टेकिंग वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं ना, सबको ही कुछ ना कुछ तो ले ही रहा है. ओके, नाउ लेट अस राइट द फॉर्मूला. ठीक है. क्वेश्चन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी टी यूनियन सी यूनियन एम. कुछ ना कुछ पीने वाले, इसके अलावा कुछ पीने वाले कोई नहीं है. ठीक है.
सो फॉर्मूला बताओ, T यूनियन C है यूनियन M का नंबर ऑफ, T थोड़ा P फास्ट, plus number of C प्लस नंबर ऑफ C प्लस नंबर ऑफ plus M, number of M आगे minus T number of T intersection number of माइनस T minus intersection. number of C इंटरसेक्शन M, इसके अलावा कुछ, No. No. बस ये सब फॉर्मूला इधर ही खत्म हो गया। क्यों इधर खत्म हो गया? उसके आगे T इंटरसेक्शन M नहीं था और उसके आगे तीनों का इंटरसेक्शन भी नहीं था। ठीक है, तो फॉर्मूला इतना ही है, N of T 25 20 15 minus 10 minus 8 45 60 60 minus 18 42 स्टूडेंट्स टोटल आ गए। ठीक है, क्लियर विद दिस? ये सम इजी है, सिर्फ यहाँ पे है ना कंफ्यूज परसेंटेज से किया है। सो फ्रॉम अमंगस्ट 2000 literate individuals, so there are 2000 literate individuals, 70% read Marathi newspaper, 50% read English newspaper, and 32.5% read both Marathi and English. 38.5%. Okay, ये दो वाला ही सम है। 32.5. Find the number of individuals who read at least one of the newspaper. At least word का मतलब होता है यूनियन का मीनिंग है और या फिर at least. At least word का मीनिंग क्या है? उसको वर्ड को डाइसेक्ट करते हैं। At least word का मीनिंग क्या होता है? ग्रामेटिकली बताओ। Yes please. At least का मीनिंग क्या होता है? Make it in simple language. Yes please. At least word का मीनिंग क्या होता है? Either Marathi minimum or English One of the two. or both. Both. Either Marathi, English or both. That is meaning of at least. यानी कि at least का meaning और हो गया mathematically. Mathematically at least है और यानी union. So that is my question. So now how to do it? There are different ways to do it. तुम पूरा सब परसेंटेज में करो, लास्ट में परसेंटेज को सॉल्व करो, या फिर पहले परसेंटेज को सॉल्व करो। ठीक है, पहले परसेंटेज ढूंढो, मतलब पहली परसेंटेज यानी मैथ्स मराठी न्यूज़पेपर रीड करने वाले कितने 70% यानी 70 अपॉन 100 एंड टोटल नंबर ऑफ पीपल आर 2000। ठीक है, तो पहली परसेंटेज सॉल्व कर सकते। अंडरस्टूड दिस? दैट इज 7 2 14 यानी 1400 पीपल रीड मराठी न्यूज़पेपर। अच्छा, बाय द वे बॉक्स आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा, क्योंकि there are people who does not read. Next page में I think so एक question है, neither Marathi nor English. चेक करो, next page पे लिखा है question. Yes sir. ठीक है, so now understand this. तुम्हारा चॉइस है, तुमको पहले से परसेंटेज को कन्वर्ट करना है या बाद में कन्वर्ट करना। अभी मैंने स्टार्ट ही कर दिया तो मैं पहले ही कन्वर्ट कर। say 1500। अभी इंग्लिश का बताओ, 50% यानी टोटल का 50%, 1000। नेक्स्ट बोथ 32.5 अपॉन 100 इंटू 2000। जीरो और डेसिमल निकल गया 650। ओके, सबसे पहले विल फाइंड एन यूनियन ई। व्हाट इज एन यूनियन ई? नंबर ऑफ एम, नंबर ऑफ Plus ई, number of E नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ई। नंबर ऑफ एम यानी 1400, 1000 minus 650. This becomes 2400 minus 650 यानी 1750। ठीक है, ओके। सो पहला क्वेश्चन था बोथ वाला, ठीक है, एटलीस्ट वाला, वो हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है नाइदर मराठी। ठीक है, सो नाइदर वाला कैसे ढूंढोगे? टोटल 2000 है, उसमें से कुछ रीड करने वाले 1750 है, तो कुछ नहीं रीड करने वाले कितने हुए? ठीक है, कितना हो जाएगा? 250।
कुछ नहीं रीड करने वाले 250. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर. नाउ ओनली वन ऑफ द न्यूज़पेपर यानी ये दिख रहा है काजू, याद है ना, ये 9th में भी किया था तुमने. ये जो इतना हिस्सा है ना, दिस इज कॉल्ड ओनली वन न्यूज़पेपर. ये वाला ओनली वन न्यूज़पेपर यानी ये एरिया नहीं आएगा. अरे क्लियर? तो हाउ विल आई डू इट? कोई 14 फॉर्मूला बना के देगा मेरे को? फॉर्मूला बनाने का मेरे को ये इतना का जो हिस्सा चाहिए, इतना का जो हिस्सा चाहिए. n of m minus minus n m intersection e. बराबर. ओके, n of m माइनस m इंटरसेक्शन e में सिर्फ इतना ही मिलेगा. ठीक है, फिर e के लिए क्या करोगे? n of e n of minus n intersection n. section ओके, पर मेरे को अगर दोनों चाहिए तो एक ही फॉर्मूला बताओ. A union B minus intersection. वेरी नाइस. पूरा यूनियन में से ये इंटरसेक्शन माइनस करो, यानी क्या आएगा? n ऑफ m यूनियन e में से m इंटरसेक्शन e माइनस करो. दैट इज m यूनियन e कितना है? 1750 में से इंटरसेक्शन 650 माइनस करो. आंसर इज 1100. So if you notice it, it is greater than 6, less than 10, x is greater than equal to 6, less than equal to 8. This is called as exclusive, this is called as inclusive. Exclusive और inclusive. Exclusive का मतलब होता है round bracket, and inclusive का मतलब होता है square bracket. Now understand करना, ये दिमाग में fit कर लो. अगर more than है मतलब 6 नहीं आएगा, 6 से ज्यादा नंबर आएगा तो 6 से ज्यादा नंबर 7 आएगा, 8, 9 वो आएगा. 6 नहीं आया. That's the reason the word used is exclusive. Exclusive यानी 6 छोड़ के उसके आगे वाला नंबर आएगा. That's the reason round bracket आया. But अगर equal to आया तो 6 भी आएगा, उसके आगे का नंबर भी आएगा. So we have a square bracket. तो ये in future सबके लिए याद रखना, ठीक है? Exclusive और inclusive. Okay. Now if it is written, can you tell me कैसे brackets आएंगे? Round bracket 6, Round bracket 6, brackets comma square bracket. square bracket का 10. Clear with this? ठीक है? Now you must have understood this concept. Now come to page number 98, 12 sum. 12 sum पे आ जाओ. Write the following intervals in set builder form. ठीक है? So इसको set builder form में लिखने का है. X such that X belongs to, अब यहाँ पे दिया नहीं है, I'll take it rational numbers. ठीक है? देखो सिर्फ आंसर में चेक करना, ये रैशनल लिखा है कि क्या लिखा है. X is more than -3 and it is less than 0. राउंड ब्रैकेट है ना, इसलिए more than -3 less than 0. ओके, लेट मी जस्ट चेक. इसमें सिर्फ इमेजिनरी टर्म नहीं आया. रियल नंबर का मतलब क्या होता है? रैशनल, इरैशनल, सब नंबर्स आ गया. ठीक है? x belongs to real number, x is more than 3 and less than 0. ठीक है? नाउ टेल मी सेकंड वाले का 6 और 12 लिखा है. सो हाउ विल आई राइट इट? अच्छा, रियल नंबर मतलब इंटीजर्स, रैशनल, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, वो सब कुछ इसी में आ गया. सब टाइप का नंबर, रैशनल, इरैशनल, सब नंबर्स. सिर्फ इमेजिनरी, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पढ़ा था वो इसमें नहीं आता, उसके अलावा सब आ गया. नाउ टेल मी 6 and 12 कैसे लिखोगे? X such that X belongs to natural numbers. रियल नंबर्स आगे. हर एक रियल नंबर यूज 6 Less than equal to X. less than equal to less than equal more to than X. equal to 6, less than equal to 12. 12. तो मैंने सेट बिल्डर एंड रूल फॉर्म में अरेंज किया हुआ है. फोर्थ वाला, yes, -infinity to 5. How will I arrange this?
x such that x x belongs to real numbers. real Tell me, numbers x is minus more than minus infinity, बराबर, एंड यहाँ पे क्या आएगा? Less than equal to 5. Equal to. लेस देन इक्वल टू 5, करेक्ट ना? ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया बिकॉज इंफिनिटी में नहीं लिखूंगा, सिर्फ इतना ही लिखूंगा। इसका मीनिंग ये इंफिनिटी हो गया ना, टुवर्ड्स कौन सा वाला इंफिनिटी, क्योंकि वो लेस जा रहा है ना, लेस जा रहा है मतलब कौन सा इंफिनिटी आ गया? टुवर्ड्स लेफ्ट साइड वाला इंफिनिटी। समझ में आया? Yes, sir. ओके, अब उसी का मेरे को इसका एक्सप्लेनेशन करो, 6 एंड इंफिनिटी। बोलो। x is More than 6. More than 6. मोर देन 6। ओके, तुम ऐसे लिखोगे, मोर देन 6 बताया मतलब वो इंफिनिटी की तरफ चला गया, पर ये ऐसे लिखने का जरूरत नहीं है, तुम एक ही लिख रहे हो ना, तो ऐसे भी लिखोगे उसका मीनिंग सेम ही होगा, x is more than 6। इज दिस क्लियर टू यू एवरीवन? मैंने x का कंडीशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज, दिस इज कॉल्ड इनइक्वालिटी, ग्रेटर स्मॉलर साइन इज कॉल्ड एज इनइक्वालिटी, एंड राइट द सॉल्यूशन सेट फॉर x। ओके, तुमको इसका सॉल्यूशन सेट लिखने का है। दिस इज 19 minus 9। नाउ द मेथड ऑफ सॉल्विंग इज ट्राई टू गेट x ओवर हियर। x लाने के लिए सबसे पहले 17 निकालते हैं, सब जगह पे -17 किया है, ठीक है? So यहाँ पे 2x plus 17 becomes 2x. What I have done is I have removed 17. How do I remove 17? मैंने -17 इधर किया, मतलब मैंने सब जगह पे -17 किया, समझा? So what does that become? -28, बराबर ना? 26. -26, and this becomes 2. Next, divide by 2 किया. Now do remember, whenever I multiply or divide by a negative number, तो inequality change हो जाता है। ये दिमाग में फिट करो, ये in future बहुत काम आएगा। If I am going to multiply or divide with a negative number, inequality change होता है। तो inequality change कब नहीं होता है? Tell me. जब पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें। When I am multiplying or dividing with a positive number, inequality change नहीं होता है। When I am adding or subtracting, inequality change नहीं होता है। चेक करो, मैंने यहाँ पे सब जगह पे -17 किया, inequality change नहीं हुआ। चेंज होने का मतलब ये उल्टा हो जाएगा, ये स्विच करेगा, ठीक है? दैट इज चेंज हो गया। बट इफ आई मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय अ नेगेटिव नंबर, तब इनइक्वालिटी चेंज। मेरे को x में इंटरेस्ट है ना, तो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, मैंने 2 से डिवाइड किया है, तो बताओ मेरे को इनइक्वालिटी चेंज होएगा? नहीं होगा। नहीं होगा, बिकॉज पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है। सो व्हाट इज माय x का आंसर? मोर देन -13 एंड लेस देन 1। दिस इज योर सॉल्यूशन। ओके, ब्रैकेट में भी मैं लिख सकता हूँ, याद है अभी अपने ब्रैकेट में स्टडी किया था। बताओ जरा ब्रैकेट में कैसे आएगा? इधर राउंड ब्रैकेट आएगा कि स्क्वायर ब्रैकेट? राउंड। और इधर स्क्वायर। समझ में आया सॉल्यूशन सेट? यस सर। ओके, नाउ ये तो सबसे इजी था। अब तुम्हारा मेन सम आ रहा है, इसके ऊपर बहुत ध्यान देना। Because it's a quadratic, because there are 2 answers possible over here, इसमें बहुत प्रॉब्लम आता है। ये वाला इजी क्यों था? बिकॉज इसमें x था, लीनियर था, तो एक ही आंसर आने वाला था, ये एक ही ब्रैकेट बनने वाला था। So this was far simple। यहाँ पे मेन बिल्कुल ध्यान। What have I done? मैंने -20 बोथ साइड्स किया, ठीक है? मैंने कहा था ना, ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे देयर इज नो चेंज इन इनइक्वालिटी साइन, तो इनइक्वालिटी साइन सेम रहा। और एल सिंपली -20 बोथ साइड्स क्यों समझो, सीधा मैंने 20 इधर ले लिया तो -20। मैंने इधर ऐसा क्यों नहीं बोला, मैंने 17 इधर ले लिया, बिकॉज इधर 2 साइड्स थे ना, इधर 2 साइड था, इसलिए मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने 17 इधर लिया, ठीक है? क्योंकि वो इधर भी 17 निकालना पड़ेगा, तो इसमें -17 पूरे में किया।
पर यहाँ पर 2 ही था ना टर्म्स, तो इसलिए मैंने बोला 20 मैंने इधर ले लिया, और एल्स यू कैन से इट -20 ऑन बोथ साइड। ओके, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, क्या आंसर आता है? 20 का फैक्टर सबट्रैक्ट करके 1, 5 4 are 5 4s are, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, x - 5 x + 4 इज ग्रेटर देन 0। याद है ना मिडिल टर्म स्प्लिट करने का प्रोसीजर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ ग्रेटर देन 0 मतलब क्या? पॉजिटिव वैल्यू। लेस देन 0 मतलब क्या? नेगेटिव वैल्यू। सो वी नो दैट दिस इज ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव वैल्यू। कैन टेल मी व्हाट आर द कंडीशंस टू गेट पॉजिटिव वैल्यू? कब पॉजिटिव आता है? कब प्रोडक्ट का आंसर पॉजिटिव आता है? नाउ दिस इज वेयर यू हैव टू अप्लाई रियल गुड ब्रेन्स। तुम्हारा आंसर पॉजिटिव कब आता है? टेल मी। ये पॉजिटिव आंसर देगा, हाँ या ना? नहीं, पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव देगा? negative. पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव देगा? Positive. 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 पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव देगा? Positive. Positive. अब मेरे को आंसर करो, मेरा क्वेश्चन आप समझेगा। Same sign. पॉजिटिव, वो मोर देन 0 ना पॉजिटिव, पॉजिटिव आंसर कब आएगा? जब दोनों पॉजिटिव में रहेंगे Same तब। sign. वेरी नाइस, वेरी गुड। आई होप नाउ यू आर क्लियर अबाउट दिस। जब दोनों पॉजिटिव है, ठीक है? सो दिस इज माय केस 1। केस 1 इज दोनों पॉजिटिव रहेगा। और कब पॉजिटिव आएगा? जब दोनों नेगेटिव रहेगा। वेरी गुड, दैट इज माय केस 2। या तो दोनों पॉजिटिव रहेगा तब पॉजिटिव आंसर आएगा, बिकॉज प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है। या तो दोनों नेगेटिव रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। समझा? अच्छा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता था क्या? नहीं। वो तो नेगेटिव आंसर देगा। वो लेस देन होता तो मैं करता। ओके, हियर x is more than 5, clear? और x is more than -4, is that clear? Yes, sir. ओके, अब दोनों में से कोई एक ही एक्सेप्ट करेगा, तो ये -4 है और ये 5 है। मोर देन 5 का मतलब ये हो गया, मोर देन -4 का मतलब ये होगा। अब दोनों में से कौन सा कंडीशन है, कौन सा कंडीशन एक्सेप्ट करूं, इसको या इसको? कौन सा कंडीशन एक्सेप्ट करूं जिसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? 4 -4 दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए यार। ये मोर देन 5 है, ये मोर देन -4 है। -4 4. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, मतलब इंटरसेक्शन होना चाहिए। शॉर्ट में बता दो, इंटरसेक्शन होना चाहिए। सोचो जरा, इंटरसेक्शन होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, यूनियन नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्शन होना चाहिए। मैंने दोनों सेट लिख के दिया है, ड्रॉ करके दिया है। इन दोनों का इंटरसेक्शन बताओ। उनके बीच के नंबर। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है। देखो, ये कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है, कॉमन कंडीशन इधर है, ये और ये पार्ट कॉमन है, ये नहीं। समझा? तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने का मतलब एंड मैंने पूछा है, एंड, ठीक है? तो उसका मतलब इंटरसेक्शन, कॉमन पार्ट क्या आएगा? x इज मोर देन 5। समझा? अब इधर तुमको अभी इधर समझ में आएगा। x इज लेस देन 5, x इज लेस देन -4। चलो वापस ड्रॉ करते हैं। ये -4 है, 5 नंबर लाइन में -4 पहले होता है, 5 बाद में होता है। लेस देन -4 का मतलब इधर आया, लेस देन 5 का मतलब इधर आया। अब बताओ मेरे को इंटरसेक्शन क्या है? -4. -4 -4 और -5 में से इंटरसेक्शन क्या है? मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, x इज लेस देन -4। ठीक है? अब मैंने दोनों केसेस सॉल्व किया, अब मेरे को फाइनल आंसर लिखने का है। तो फाइनल आंसर में क्या आ गया? फाइनल आंसर में क्या आया है? x मोर देन 5 ये आया है, x लेस देन -4 ये आया। अब ये दोनों भी आंसर एक्सेप्टेबल है।
इन दोनों में से कोई एक एक्सेप्ट हो रहा था, इन दोनों में से कोई एक एक्सेप्ट हो रहा था, पर ये दोनों पूरा का पूरा एक्सेप्ट होगा, तो मेरे को फाइनल आंसर बताओ क्या लिखूं? इंफिनिटी। फाइनल आंसर क्या लिखना चाहिए? इंफिनिटी। x is क्या मोर देन, लेस देन, हाँ बराबर बोलो, x is less लेस देन than माइनस लेस फोर देन माइनस 4, यूनियन x is मोर देन 5। बीच में मेरे क्या साइन डाला है? यूनियन। समझा? एक मिनट दिख देगा। ओके, x is मोर देन 5 यूनियन x is लेस देन माइनस 4। ठीक है, अब यही चीज लिखने का और एक तरीका है। लेस देन माइनस 4 का मतलब ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है ना, तो आई विल राइट इट माइनस इंफिनिटी टू माइनस 4 राउंड ब्रैकेट यूनियन मोर देन 5, यानी ये इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, 5 टू इंफिनिटी। दिस इज हाउ यू हैव टू प्रेजेंट योर आंसर। समझ में आया? yes sir. yes sir, कैन यूज दैट आल्सो। So let's take up different points over here. Okay, so I am taking the first part. X is less than minus 4. Sorry. Now तुम्हारे आंसर्स क्या आ गए चेक करो, 5 और माइनस 4। तो मैंने नंबर लाइन पे माइनस 4 और 5 ड्रॉ किया। अब इस सर ओके, मैंने नंबर लाइन पे माइनस 4 और 5 ड्रॉ किया। अब मैंने नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड करा, लेस देन माइनस 4 टू 5 ग्रेटर देन 5। तो मैंने ये पूरे नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया, x लेस देन माइनस 4 टू 5 एंड x ग्रेटर देन 5। ठीक है, मैंने इस पूरे रीजन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया पूरे नंबर लाइन को। ओके, अब आई एम गोइंग टू टेक टेस्ट पॉइंट्स। टेस्ट पॉइंट यानी मैं कोई भी पॉइंट्स लूंगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेस देन माइनस 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो कोई भी पॉइंट लो लेस देन माइनस 4। कौन सा पॉइंट लेने का है? लेस देन माइनस 4, कोई भी पॉइंट ले minus 5, -5 नाउ टेक अ टेस्ट पॉइंट इन बिटवीन दिस, -2.5 माइनस 4 और minus 5 के 3, बीच का कोई भी पॉइंट ले लो। -4.5 पॉइंट में मत लेना, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा। कोई भी नंबर ले Zero. लो, 1 2 3, 0 भी ले सकते हैं, minus 3, हाँ, 0 भी ले सकते हैं, लेट्स टेक 0। मोर देन 5 कोई भी पॉइंट ले लो, 6, 6। These are called as test points. Okay, now check the value. अभी तुमको पॉलिन ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसका वैल्यू चेक करना है। -5 दिस बिकम्स -10। x का वैल्यू मैंने वापस -5 + 4, -5 + 4 यानी -1। मैंने x का वैल्यू -5 इधर पुट अप कर दिया, -5 यानी -10, -5 + 4 यानी -1। माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, +10 आया। ठीक है, Yes, अब मैं sir. 0 पुट अप कर रहा हूं, 0 - 5, minus 5, 0 + 4, -5 × 4 बिकम्स -20। मेरे को ये नंबर में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को सिर्फ इसकी साइन में इंटरेस्ट है। पॉजिटिव आंसर आया, नेगेटिव आंसर। ठीक है, अब तीसरा वैल्यू 6 पुट अप करो, 6 - 5 1, 6 + 4 10। आंसर बताओ, पॉजिटिव आंसर। समझ में आया? ये क्लियर Yes, हो sir. गया? ओके, नाउ बिकॉज ऑफ यूजिंग दिस, बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक मेरे को आंसर मिल गया पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। मेरे को आंसर कैसा चाहिए? मोर देन 0 यानी क्या चाहिए? मोर देन 0 यानी क्या चाहिए? यहाँ पे चेक करो, positive, पॉजिटिव चाहिए। तो इन तीनों में से कौन सा एक्सेप्ट होएगा? फर्स्ट और थर्ड कौन? first or third फर्स्ट और थर्ड, यानी मेरा आंसर क्या है? देयरफॉर x इज लेस देन -4 एंड x इज मोर देन 5। बराबर?
लेस देन Yes. -4 को कैसे लिखते हैं? लेस देन -4 क्या होता है? -infinity to -4 यूनियन। ग्रेटर देन 5 को क्या लिखते हैं? 5 to 5 infinity। infinity. चेक करो, ग्रेटर देन 5 एक्सेप्ट हो गया, -4, ठीक है। तो ये एक तरीका है और ये दूसरा तरीका है। जो तुमको समझ में आए तुम वो एग्जाम में यूज कर लेना। क्लियर हो गया? सिर्फ फ्रैक्शंस वगैरह आएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कैलकुलेशन। 5x इधर ले लिया। नाउ मिडिल टर्म स्प्लिट करो, 6 1 जा 6, 6 का फैक्टर ऐड करके 5 चाहिए। 6 3 6 2 1 जा जा 6, 6 का फैक्टर ऐड करके 5 चाहिए, यानी 3 2 जा ऐड करेंगे तो 5 आता है, ठीक है। ऐड करना, तो यहाँ पे माइनस साइन आया, ऐड करना है, इसके लिए माइनस। नाउ कॉमन निकालो, 3x is common, 2x minus 1, minus 1 is common, 2x minus 1. So the brackets are 2x minus 1, 3x minus 1, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू आता है, व्हाट इज x वैल्यू? half. अगर मैं इक्वल टू 0 करूँ तो x का वैल्यू कितना आता है? -12, एंड x का वैल्यू कितना आता है? 1/3। मैं सिर्फ इक्वल में लिख रहा हूँ, वैसे ये मैं यूज नहीं करूंगा, ठीक है। अब मैं वो पहला तरीके से करता हूँ, फिर मैं बॉक्स वाले तरीके से बताता हूँ। Now tell me, लेस देन 0 यानी नेगेटिव आंसर चाहिए। सो नेगेटिव आंसर तब कौन से केसेस में आता है? कौन से केस में नेगेटिव आंसर आता है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यस, Positive सो वन is इज पॉजिटिव क्योंकि इक्वल टू साइन है, इसलिए मैंने वैसे पुट अप किया है। अनदर इज नेगेटिव, ठीक है। सो पॉजिटिव को सॉल्व करो, 2x इज मोर देन इक्वल टू 0, सॉरी 2x इज मोर देन इक्वल टू 1, x is more than equal to 1/2. Negative, 3x is less than equal to 1, x is less than equal to 1/3. Now on a number line ये 0 होता है, ठीक है, समझो ये 1 है, तो 1/2 और 1/3 जैसे पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा? 1/2 और 1/3 ये 0 और 1 के बीच में ही आएंगे। 1/2 का मतलब होता है 0.5। नहीं समझ में आ रहा है तो फ्रैक्शन को डेसिमल में करो। 1/2 यानी 0.5, 1/3 यानी 1/3 यानी 0.3333 यानी 0.3 ले लो। 1/2 यानी 0.5, 1/3 यानी 0.3। नाउ टेल मी, पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा? दोनों 0 और 1 के बीच में आएंगे। पहले 1/3. 1/3 पहले 1/3 यानी मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ 0.3 होता है, 333 होता है तो 0.3 लिखा, और ये 1/2 यानी 0.5 होता है, ठीक है। अब एरियाज मार्क करते हैं, मोर देन, लेस देन, ठीक है, मोर देन 1/2, लेस देन 1/3। ओके, नाउ टेल मी कॉमन एरिया क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन इंटरसेक्शन चाहिए, इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? यस प्लीज। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा है. नहीं आ रहा है तो क्या लिखोगे? विच इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ गया? क्लियर विद दिस? Yes sir. यस सर। केस 1 में मैंने इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव लिया, अब उल्टा करो, केस 2 में इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव लेना, ठीक है। दैट मीन्स x is less than equal to 1/2, x is more than equal to 1/3। वापस नंबर लाइन, this is 0 1, this is 1/3, this is 1/2। now next shade बता देने का, नीचे का नहीं दिख रहा। लेस देन 1/2, टेल मी लेस देन 1/2 किधर रीजन है? लेस देन इक्वल टू 1/2 रीजन किधर है? लेफ्ट हैंड, दिस इज द रीजन। मोर देन 1/3 रीजन किधर है? राइट की तरफ। ठीक है, नाउ टेल मी इंटरसेक्शन रीजन किधर है? 1/3 और 1/2 के बीच में। बीच में, वेरी नाइस। ये बीच का एरिया इज कॉमन रीजन। तो माय आंसर बिकम्स x इज मोर देन इक्वल टू 1/3। ये बीच का रीजन है ना,
एंड लेस देन इक्वल टू 1/2। समझ में आया? अब इसको ब्रैकेट के फॉर्म में बताओ कैसे आएगा? इसी को Square- ब्रैकेट के फॉर्म में, Square bracket 0. वेरी नाइस, वेरी गुड। Square स्क्वायर ब्रैकेट 1/3 पहले 1/2 बाद में, बिकॉज नंबर लाइन में 1/3 पहले आता है 1/2 बाद में। क्लियर विद दिस? इजी है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब यही चीज मैं दूसरी ट्रिक से बता रहा हूं। मैं इसको 3 रीजन्स में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है? मेरा पॉइंट से ये मैंने क्यों ढूंढ के रखा था, सो दैट मैं इधर भी यूज कर सकूं उधर भी यूज कर सकूं। चलो अभी मैं इसको 3 रीजन में डिवाइड कर रहा हूं। सबसे पहले आता है 1/3 और दूसरा आता है 1/2, ठीक है? इस साइड समवेयर 0 आएगा, इस साइड समवेयर 1 आएगा। ओके, अब इसको 3 रीजन में डिवाइड करो। दिस इज द फर्स्ट रीजन, दिस इज द सेकंड रीजन एंड दिस इज द थर्ड रीजन। ओके, मैंने नंबर लाइन पे 3 रीजन डिवाइड किया। फिर फर्स्ट रीजन बात बताऊं, x इज लेस देन 1/2, इक्वल टू भी डालना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चन में इक्वल टू है, इसलिए डालता हूं। ओके, सेकंड रीजन बताओ, दिखाई दे रहा है क्या नहीं दे रहा? सेकंड रीजन बताओ, ये वाला रीजन कैसे बताओगे? 1/2, ठीक है? थर्ड रीजन इधर से स्टार्ट, यानी क्या आएगा, x इज मोर देन इक्वल टू 1/2। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं? Yes. अब टेस्ट पॉइंट्स लेकर चलो, लेस देन इक्वल टू 1/3 का टेस्ट पॉइंट्स बताओ। कोई भी टेस्ट पॉइंट, 0 ही लिखा हुआ इधर, समझा? इधर ही लिखा है ना मैंने 0, 1/3 से कम वाला 0 आ गया। 1/3 और 1/2 के बीच में, यानी 0.3 और 0.5 के बीच में, तो 0.4 आएगा, 4, हाँ. ठीक है? या फिर 1/4 में 0.4 ही बता। x मोर देन 1/2 के लिए कौन सा लोगे टेस्ट पॉइंट? 1, 1. ठीक है? कोई भी पॉइंट ले सकते हो, वो तुम्हारा चॉइस है। ओके, अब साइन चेक करते हैं आंसर का। अब ये जो वैल्यूज दिया है ना, वो इधर पुट अप करो। मैंने x के बदले 0 डाला, 0 - 1 यानी -1, 0 - 1 यानी -1, माइनस इंटू माइनस यानी प्लस, पॉजिटिव आंसर आया। अब 0.4 पुट अप करो, 2 into 0.4, 2 into 0.4 यानी 0.8 minus 1, 0.8 minus 1 will become minus 0.2। मेरे को आंसर में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को सिर्फ साइन में इंटरेस्ट है। मैंने वैल्यू भी नहीं लिखा, मैंने सिर्फ साइन लिखा। 3 into 0.4 यानी 1.2, 1.2 minus 1, 1.2 minus 1 यानी पॉजिटिव, 0.8 minus 1 यानी नेगेटिव आंसर, 1.2 minus 1 यानी पॉजिटिव आंसर। नेक्स्ट 1 पुट अप करो, 2 minus 1 यानी पॉजिटिव, 3 minus 1 यानी पॉजिटिव, यानी इसका आंसर नेगेटिव आया। माइनस इंटू प्लस इज नेगेटिव, प्लस इंटू प्लस इज पॉजिटिव। ओके, अब मेरे को कौन सा चाहिए, पॉजिटिव आंसर चाहिए कि नेगेटिव आंसर चाहिए? Negative. यस, वेरी नाइस, वो इधर से देख के पता चलेगा। मेरे को नेगेटिव आंसर चाहिए, तो तीनों में से कौन सा केस एक्सेप्ट हो गया? Second. Second. सिर्फ ये केस एक्सेप्ट हो गया, या नहीं? माय वैल्यू इज x इज मोर देन इक्वल टू 1/3, लेस देन इक्वल टू 1/2। इसी को कैसे लिख सकते हैं? 1/3 1। चेक करो, तुम्हारा पहला आंसर और ये दूसरा आंसर, दोनों मेथड से बता दिया, ठीक है? विच एवर यू अंडरस्टैंड, ठीक है? कौन सा अच्छा लगा भाई? तो देखो तो सही। So 2x upon x minus 4 less than equal to 5। पहले इसको अरेंज करते हैं, लेस देन इक्वल टू 0, क्रॉस करो, कॉमन डिनोमिनेटर, टू एक्स माइनस 5x यानी -3x, माइनस और माइनस यानी प्लस, 5 4s are 20, 2x minus 5x is -3x, -5 into -4 is +20, लेस देन इक्वल टू 0। अब मेरे पास दो केसेस है, पहले मैं x की वैल्यूज, रफ वैल्यूज निकालो।
20 minus 3x equal to 0 and x minus 4 equal to 0. जैसे अपन क्वाड्रेटिक में दो ब्रैकेट बना था ना, वैसे इधर भी दो ब्रैकेट बना है. ये एक ब्रैकेट बना है, ये दूसरा ब्रैकेट बना है. ठीक है, मैं इधर रफ वैल्यूज निकाल रहा हूं. सो व्हाट इज x इज इक्वल टू 20/3 एंड x इज इक्वल टू 4. 20/3 यानी कितना होता है? 6.66. ठीक है, ओके. तो दिस इज 20/3 यानी 6.66 और ये 4. ओके, नाउ टेल मी लेस देन इक्वल टू 0 कौन से केसेस में आता है? यस प्लीज, लेस देन इक्वल टू 0 कौन से केसेस में आता है? नेगेटिव है. नेगेटिव आंसर कौन से केसेस में आता है? एक पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव रहेगा. मोर देन इक्वल टू 0 एंड एक नेगेटिव रहेगा. लेस देन इक्वल टू 0. दूसरा केस 2, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है. अभी उल्टा क्या करेंगे? ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव. पॉजिटिव. समझा? इसको तुम खुद सॉल्व करोगे. अच्छा, दूसरे मेथड से सिर्फ एक्सप्लेन करके छोड़ रहा हूं, बाकी का तुम करोगे. नंबर लाइन पे इसको 3 रीजन में डिवाइड करो. 20/3 और 4 में से बड़ा और छोटा कौन सा है? 20/3 यानी 6.66 और 4. पहले कौन आएगा? 4 आएगा कि 20/3 आएगा? 20/3. पहले 4 आएगा क्योंकि 4 छोटा है ना, फिर 20/3 आएगा. क्लियर? अब इसको नंबर लाइन में 3 पार्ट में डिवाइड करो. दिस इज 1 पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट, दिस इज माय थर्ड पार्ट. यानी x is less than 4, less than equal to, more than equal to 20/3 and x is more than equal to 20/3. ठीक है, फिर यहाँ पे एक पॉइंट लोगे. टेल मी कौन सा पॉइंट लोगे? यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 5 का कौन सा पॉइंट लेना है? लेस देन इक्वल टू 4 का 3. बेस्ट पॉइंट बताओ. यस, लेस देन 4 यानी 3 लोगे. 4 और 6.67 के बीच का कोई भी पॉइंट कौन सा लोगे? 5. 5. मोर देन 6.67 का कौन सा पॉइंट लोगे? 7. 7. वेरी नाइस. फिर साइन चेक करना है और फिर आंसर लिखना है. ठीक है, अगर मेरे को पूछोगे कौन सा इजी मेथड है, वो ज्यादा इजी है. उसका हैबिट नहीं है. तुमको इसका हैबिट है, उसका हैबिट नहीं है. ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं दोनों तरीके से प्रैक्टिस करो. एक दो सम बात तुमको वो ज्यादा इजी लगेगा. क्लियर?